Good evening, my dear students. Rubika ma'am is with you once again. And today we are going to discuss the topic of globalization. This topic I want to explain for my 10th class students. So, here we are talking about the globalization. So, first of all, what is the meaning of globalization? Globalization is the flow of ideas, commodities, goods, thoughts, techniques from one country to another country. This is called globalization. Interdependence or interconnection between the market of the different economies of the world is known as a globalization. The third definition, globalization has the power to change the world into a village. Yes बच्चे, ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको दिए बेटे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्लो ऑफ आइडियाज, कमोडिटीज, गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, द लिवाइस ब्रांड, द एडिडास ब्रांड, these are the foreign brands but available in your country also, and earlier it was not possible. So this is because of globalization. Globalization को हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं बेटा कि it is a free trade policy. Any country can export or import the goods and services from one country to another country. This is called globalization. So globalization is based on the 3 formula. LPG, liberalization, privatization and globalization. Liberalization, there is no tax barrier on the economy. Means बेटा आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर टैक्स बैरियर नहीं लगाओगे, टैक्स नहीं लोगे. दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन, मोर अटेंशन विल बी ऑन द प्राइवेट सेक्टर, नॉट ऑन द पब्लिक सेक्टर. प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है बेटा कि 50-50 पार्टनरशिप, 50-50 वर्क विल बी डिवाइडेड बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर. मीन्स योर फोकस इज ऑन द प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर. This is the second formula. The third formula is globalization. Globalization means you will exchange the ideas, you will exchange the different type of commodities with the different countries. This is called globalization. So short word में हम ये कह सकते हैं बेटा free trade policy. अब globalization के कारण क्या है? What are the causes of the globalization? So 4 causes I want to discuss in this video. The first one is technology. Because in this era we have developed our technology a lot. हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है बेटे जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ. दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ डेवलप्ड. बिकॉज ऑफ दैट यू कैन ट्रांसफर द गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजली. सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी हैव 4 ways: एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज और रेलवेज. The third reason is education system. Education system is developed. Now people have many type of the skills. So that's why we can say that education is also the another aspect of globalization. So these are the causes of the globalization. Globalization को चलाने के लिए सबसे important चीज़ें क्या है? MNCs. अब MNCs की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे लिए क्या काम करती हैं बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो हैं द कंपनीज दोज हैव देयर प्रोडक्शन यूनिट विद इन 1 or 3 or 4 countries. दे आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज. मीन्स बेटा ऐसी कंपनीज जिनकी प्रोडक्शन यूनिट एक से ज़्यादा देशों में होती है वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं. तो ग्लोबलाइजेशन लाने वाला कौन? मल्टीनेशनल कंपनीज. अब वो मल्टीनेशनल कंपनीज खाली हाथ नहीं आएंगे बेटा ये आपके देश में. दे विल ब्रिंग द आइडियाज विद देम, दे विल ब्रिंग द स्किल्स विद देम, दे विल ब्रिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद देम. वो अपने साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, वो अपने साथ स्किल्स लेके आएंगे, वो अपने साथ आइडियाज़ लेके आएंगे.
and when they will bring the foreign investment in your country, so automatically your economy will developed, or the financial crisis will removed from your country. So is it clear? नेक्स्ट, यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड व्हाट टाइप ऑफ द बेनिफिट्स दे विल गिव टू यू एंड व्हाट टाइप ऑफ द बेनिफिट्स दे विल गेट फ्रॉम यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मल्टीनेशनल कंपनीज विल maintain or make the production unit in your country if you will provide them cheap labor, cheap raw material, machinery, good climate and electricity without error. These type of the special location is known as a special economic zone. जब आप उनको ये प्रोवाइड करोगे तब मल्टीनेशनल कंपनीज आपके देश में प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगी. उसके बाद बेटा द मेन टारगेट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज इज टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम योर कंट्रीज. अब मल्टीनेशनल कंपनी सबसे पहले तो बेटे अपने प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पे लगाएंगी जहाँ पे सस्ता माल मिलेगा, जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल होगी, जहाँ पे बिजली कट्स नहीं होंगे, गुड क्लाइमेट होगी एंड देयर इज़ अ वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम और द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा. तो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने यूनिट्स को वहीं पे अरेंज करेंगी. उसके बाद दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनीज का मेन टारगेट क्या रहेगा? मल्टीनेशनल कंपनीज का मेन टारगेट यही रहता है बेटे कि वो मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाने के लिए आपके देश में आते हैं. अब आप कहोगी कि मैम हमें क्या बेनिफिट है? येस, वी हैव बेनिफिट फ्रॉम द MNCs बट इट इज़ वेरी लेस, बट वी कैन से दे विल प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटी टू आवर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर. हमारे देश में प्रोडक्शन यूनिट लगने से जब MNCs हमारे देश में आकर अपने प्रोजेक्ट लगाएंगी तो हमारे स्टूडेंट्स, हमारी जो लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है और जो अनस्किल्ड लेबर है, दोनों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बेटा. सेकेंड, इट विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री. और जब अर्निंग सोर्स होगा लोगों के पास तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा. द थर्ड थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विल डेवलप्ड इन योर कंट्री. आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा. और फोर्थ टारगेट, यहाँ पे अब मैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसीज की बात करूंगी बेटे. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसीज में ये आएगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से स्मॉल ट्रेड और जो छोटे व्यापारी हैं आपके, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द मल्टीनेशनल कंपनीज. वो मल्टीनेशनल कंपनीज से कम्पीट नहीं कर पाएंगे बेटे और वो मार्केट से फ्लैश आउट हो जाएंगे, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं चाइनीज टॉयज हैज़ वैनिश्ड आवर इंडियन टॉय मार्केट. सो चाइनीज टॉयज की वजह से, बिकॉज दे आर चीपर and Indian toys are expensive, so our toy market is finished and Chinese toy market is developed. So this is the factors which is related to the globalization. So thank you my dear students and watch it carefully.